Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope you all are fine, enjoying good health and learning at homes. I'm your social studies teacher Aruj Yunus, and I hope you also enjoying our online video lectures and studying at home. And my dear class, today we are going to do long question number 2 of unit 4, government, and you have to do it on your copies neat and clean. And our long question number 2 is about the rights of citizens. Our unit 4, in which we discussed about the government, working of government, institutions of government, how government work, what is meant by government, group of people with the authority to govern a country or a state. ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके पास ये अथॉरिटी होती है, जिनके पास ये पावर होती है कि वो मुल्क चला सकें। और हमारे पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पार्ट लेती हैं, उनका आपस में कंपटीशन होता है। और जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वोटिंग के थ्रू हमारी गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती है, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उसको एज अ गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। And as you all know, political party named PTI is governing our beloved country, Pakistan, and our Prime Minister is Imran Khan nowadays, and our President is Arif Alvi nowadays. And I also told you that our Chief Justice is Justice Gulzar Ahmad. So, my dear students, before doing our long question number 2, let us revise rights of citizens, which we have discussed earlier in our unit 4. Rights of citizens. Importance of rights of citizen. As I told you that all people who live in province or a state, in a city or village and enjoy all rights and perform duties are called citizen. जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, और being a citizen of Pakistan there are some rights. पाकिस्तान में रहते हुए आपके कुछ हकूक़ हैं जो हमारे आइन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन हैं। आपको 2 तरीके होते हैं सिटीज़नशिप हासिल करने के बाय बर्थ। जैसे कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हम यहाँ के सिटीज़न हैं, लेकिन अगर हम कहीं किसी और कंट्री मूव करना चाहें तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको लीगल वे कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट ऑफ सिटीज़न. द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय अ स्टेट to its citizen to lead a better life are known as rights of citizen. The citizens enjoy many rights provided by the state. They, as a citizens, also have some duties towards the state. They can only be called good citizen if they fulfill their duties. By performing these duties, they become good citizen. In contemporary world, the state gives utmost importance to the rights of their citizen. These rights have been written in the constitution. If the people are not given these rights in a country, it becomes impossible to protect their lives and property. The progress and the maintenance of law and order in a state is only possible if its citizens are given their rights. किसी भी मुल्क को अच्छी तरह से चलाने का यही तरीका है कि वहाँ के जो भी शहरी हैं उनके हकूक़ पूरे किए जाएँ। उनके हकूक़ पूरे करने का जो फ़र्ज़ है वो हमारी हुकूमत पर होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में ये हमारे राइट्स जो हैं वो ऑलरेडी गिवन है, ये रिटन है वहाँ पे, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हकूक़ पूरे किए जाएं। राइट्स ऑफ सिटीजन्स. सम मेजर राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर लिस्टेड बिलो. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, provision of health and education facilities, right to vote, religious independence, right to sell or purchase property, freedom of written and oral expression, and the right to establish a political party, right of every citizen to protect his language, customs and culture. अब ये हमारे पास डिफरेंट राइट्स हैं। ये तो कुछ हकूक़ लिखे ना, हमारे पास बहुत से हकूक़ हैं जो हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है हमारे हकूक़ पूरे करना। इस मुल्क में रहते हुए आपका ये हक़ है कि आपकी जो ज़िंदगी है और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी हुकूमत की है। प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़. आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, चेक एंड बैलेंस रखना कि हमारे हॉस्पिटल्स में कैसी वर्किंग हो रही है, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स किस तरह वर्क करें, हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। राइट टू वोट. आप का जब आईडी कार्ड बन जाता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, शनाख्ती कार्ड जिसको कहते हैं, उसके बाद आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपका हक़ है।
रिलीजियस इंडिपेंडेंस, आपकी जो भी मजहबी ख़यालात हैं, आपका जो भी रिलीजन है, आप उस पे आज़ादी से इज़हार ख़याल कर सकते हैं, आज़ादी से उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो ये आपका हक है। आपके माइंड में जो भी बात है या आप जो भी कहना चाहते हैं, उसको बोलने का हक भी आपको इस कंट्री में रहते हुए मिलता है। राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू प्रोटेक्ट हिज लैंग्वेज कस्टम, ये भी हमारे रिलीजन में ही आ जाता है। जिस तरह से आपके जो भी रसूमात हैं, जो भी रहन सहन का तरीका है, आप पाकिस्तान में रहते हुए उसको आज़ादाना तौर पे कर सकते हैं, रह सकते हैं। और इसके अलावा बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास ये हक भी है कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करना चाहे, बनाना चाहे, तो हम बना सकते हैं। सो दीज आर आवर राइट्स। So let's move towards question number 2. Write 5 rights of citizens. You have to draw a margin line, mention date and day, mention unit name, unit number 4, government, and then long question answer like you do in your class. Write 5 rights of citizens. आप इसमें आपने 5 हकूक़ लिखने हैं अपने, क्योंकि आप भी शहरी है ना पाकिस्तान के, और हमने इसको रिवाइज़ किया है, तो वो मेरा ख्याल आपको अच्छी तरह से लर्न हो गए होंगे। आप लिख सकते हैं। नंबर 1, राइट टू वोट, रिलीजियस इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू सेल एंड परचेज प्रॉपर्टी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन. I hope it is clear to you all. Now you can learn it easily. After writing it neat and clean on your copies, it is your task to learn it and learn spellings as well. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.